Okay, friends, welcome back and very good morning to everybody. I hope you all are safe. Your family members, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Please, you can mute your speaker so that the other students will not get disturbed. अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट होके पूछ सकते हैं, अदरवाइज प्लीज मेक योर माइक इन अ म्यूट स्टेट. Okay, so friends, some of the students are new here. I think Kunal is there. Kunal? Yes, sir. Yeah, I hope you had gone through the previous lectures, and if you find any difficulty, any question, any query, you can just call me after 12 o'clock. We can arrange Okay, a sir. separate lecture for that. Okay? Okay, sir. Okay. So, friends, what we had discussed so far, we had started a second chapter in which we discussed the different kind of physical quantity. We also had discussed their different units. We had discussed the type of physical quantity, that is a fundamental and derived one. And then correspondent, we had discussed the fundamental unit and derived unit. After that, very important topic, a dimensional formula, which is going to be used in all the chapters of the 11th and 12th standard. 11, 12 में सारे चैप्टर में डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज होगा ही होगा. So we are able to derive the dimensional formula of a different physical quantity. Any unit of any physical quantity can be represented by a proper power of m, l, and t. It may be in the form of m, l, t, a, and k as well. So the formula made by the proper power of MLT, A or K, is defined as a dimensional formula of that particular physical quantity. So that is a physical quantity. That is a dimensional formula. Friends, then after we had started to discuss the dimensional analysis. So what is the meaning of the analysis? So the meaning of the analysis is we can solve some questions correspondent to the physics. We can solve some questions in physics by the help of the dimensional formula. So process of solving that questions by the help of the dimensional formula is said to be a dimensional analysis. So 3 questions we can solve with the help of the dimensional formula. Number 1, we can derive the relation between the MKS and CGS unit of a given quantity. आपको अगर कोई क्वांटिटी दिया हुआ है तो उसका MKS यूनिट एंड CGS यूनिट के बीच के रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला. In fact, on the last lecture, I think 1 or 2 quantity I had discussed so far, and मैंने कुछ क्वांटिटीज आपको होमवर्क में दिया होगा. तो डायमेंशनल एनालिसिस का 3 एप्लीकेशन है. नंबर 1, हम डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा कोई फिजिकल क्वांटिटी के MKS एंड CGS यूनिट के बीच में रिलेशन डिराइव कर सकते हैं. दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन. नंबर 2, जो आज हम करने वाले हैं, we can check the dimensional consistency. We can check the dimensional consistency of a given equation. अगर किसी ने आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, क्या वो सही है या नहीं है, वो हम चेक कर सकते हैं. वो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं. और तीसरा जो उसका एप्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे. तो आज का जो पूरा लेक्चर का हमारा जो टास्क रहेगा वो सेकंड एप्लीकेशन के रिगार्डिंग रहेगा. कोई इक्वेशन हमको दिया है तो क्या हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, उसका कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट सेशन, बिफोर स्टार्टिंग द सेकंड एप्लीकेशन, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कल पूछे थे. मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे. मैंने
MKS एंड CGS यूनिट के रिलेशन डिराइव करने का बोला था, तो मैं उसके आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं उसके आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप आपके आंसर के साथ उसको चेक कर दीजिएगा। अगर वो मैच नहीं हो रहे तो आप उसको एक बार वापस से सॉल्व कर दीजिएगा। चलो मुझे ये बताओ कि व्हाट वाज द फर्स्ट क्वांटिटी दैट आई हैड गिवन टू सॉल्व? Power. Power. अच्छा, पावर इज द फर्स्ट क्वांटिटी। ओके, डन। So the first one is a power. अच्छा friends, are you able to see what I am writing in the on the page? क्या आप मैं जो लिख Yes, रहा हूँ? sir. अच्छा, कुछ यहाँ पे कुछ सेटिंग मतलब चेंज हो गया है, तो प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर से आपको जो स्क्रीन मिलेगा वो व्हाइट ही मिलेगा। आज कुछ सेटिंग अंदर से चेंज हो गया है, तो आपको ब्लैक दिख रहा होगा शायद से। ओके, सो पावर का था, तो पावर का जो MKS यूनिट है, if your answer is 10⁻⁷, then it is okay, it is true. And you can also write this answer as a 1 joule per second is equals to 10⁻⁷, 1 joule per second is equals to 10⁻⁷ erg per second. You can also write this way as well. What was the second one? Surface Surface tension. Acha, surface tension was the second one. Okay, the second one is a surface tension. So the MKS unit of a surface tension is equals to, if you got the answer 10⁻�3, then it's true. मैं यहाँ पे वो सॉल्व नहीं करवाने वाला हूँ, बिकॉज इट इज अ वेरी सिंपल, वो मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में सॉल्व करवाया है। अगर आपके आंसर नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर से सॉल्व कर दीजिएगा, और उसके बाद अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछिएगा। अभी मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द आंसर ओनली. You can also write this in this manner, that 1 Newton per meter so is equals to 10⁻³ dyne per centimeter. What is the third one? Moment of inertia. Moment of inertia. Okay, moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो MKS यूनिट है, तो MKS यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इफ यू हैड derived 10⁻⁷, then it's true. Or I can also say that 1 kg meter square, moment of inertia, if you remember, mass into distance square, so 1 kg meter square is equals to 10⁻⁷ gram centimeter square. What is the next one? Density. Okay, I am writing on the left hand side. आपका जो मोबाइल है उसको हॉरिजॉन्टल, आई होप कि आपने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तो इट विल बी वेरी मच इजियर टू सी द हैंड राइटिंग. आप जूम भी कर सकते हैं अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो. चलो, किसी ने डिराइव किया डेंसिटी का? Yes, sir. Yes, sir. चलो, क्या आया? Yes, sir. 10⁻³ And -3. अगर 10⁻⁻³ लाए हो तो वो सही है. और I can write this answer in this way as well. 1 kg per meter cube is equals to 10⁻⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. And what is the last one? Impulse of force. Impulse of force. Okay, impulse of a force. तो उसका जो MKS यूनिट होता है
that will be a 10 raised to 5 times CGS unit, or I can say 1 Newton into second is equals to 10 raised to 5 times डाइन इंटू सेकेंड। तो ये सारे आंसर मैंने लिख दिए हैं। अगर आपके आंसर इसके साथ मैच हो रहे हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहे हैं तो एक बार वापस से उसको ट्राई करो, और फिर भी अगर नहीं हो रहे तो मुझे एक बार पूछ लेना। तो ये दैट इज द करस्पॉन्डेंट टू द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज जो हम करने वाले हैं वो सेकंड एप्लीकेशन है, to check the dimensional consistency of a given equation, whether it is a dimensionally consistent or not। तो उसके लिए मैं अभी व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं, व्हाइट बोर्ड मैं शेयर कर रहा हूं, तो आपके स्क्रीन पे अभी व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी हमको चेक करना है, मतलब वो जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या वैलिड है या नहीं है, उसको मुझे वेरीफाई करना है। क्या फ्रेंड्स आपके मोबाइल के अंदर व्हाइट बोर्ड आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. फाइन। तो अभी जो हमारा टास्क है, जो टॉपिक है आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेकंड एप्लीकेशन ऑफ dimensional analysis, and that application is to check dimensional consistency of गिवन इक्वेशन। एक क्वेश्चन के द्वारा, मैं एक क्वेश्चन के द्वारा ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये एप्लीकेशन एक्सप्लेन करूंगा, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो हमारा जो टास्क है आज का वो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करना है, मतलब जो इक्वेशन हमको दिया गया है क्या वो डायमेंशनली वैलिड है या नहीं है, उसको क्रॉस वेरीफाई करना है। तो डेफिनेटली वी कैन डू बाय द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला। एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। A force F is equals to mv square by r. Check dimensional validity of equation. Where it will be given to you कि यहाँ पे कौन सा सिंबल किसके लिए है वो आपको दिया होगा। Where m is a mass, v is a speed and r is a radius. It will be given to you, r is a radius। ये सब कुछ आपको दिया होगा। चलो मुझे यहाँ पे डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करना है इस इक्वेशन का। तो हाउ कैन आई चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी? तो इसको कैसे हम चेक करेंगे? अच्छा, किसी का कोई कमेंट आया है? ओके, कैन यू राइट अ लिटिल बिट बिगर? ओके, आई एम ट्राइंग टू राइट द बिगर। ओके, सो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है वो mv स्क्वायर अपॉन r है। अब मुझे ये फाइंड करना है कि ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो आई नीड टू फाइंड अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड।
तो पहले मुझे लेफ्ट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो जो है वो फोर्स है। तो फ्रेंड्स फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? 112. हाँ, तो वो आपको अच्छे से याद है, m1 l1 t-2। ओके, अब मैं क्या करूंगा, आई विल ऑल्सो फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ राइट हैंड साइड। तो राइट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब ऐसा हुआ कि mv² अपॉन r का डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब m का डायमेंशनल फॉर्मूला का स्क्वायर करना पड़ेगा और नीचे रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला। वैसे m तो मास है, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो m1 होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि v जो है वो स्पीड है। फ्रेंड्स आपका जो स्पीकर अगर चालू है तो उसको म्यूट कर दीजिएगा। v जो यहाँ पे है वो स्पीड है। तो मैं जिसको पूछूं वो मुझे बताएगा। मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जिसको मैं पूछूं वही आंसर देगा। तो हेत है वहां पे, हेत प्रजापति वहां पे हेत है। यस सर। हेत मुझे बताओ, ये v स्पीड है, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे क्या लिखना चाहिए? L1 t-1 इज द राइट आंसर। स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा l1 t-1, बट उसका वापस से स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में रेडियस है। तो हेत रेडियस का क्या होता है? L1 राइट, रेडियस का हो जाएगा l1। मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जो mv² अपॉन r है उसका हो जाएगा m1 फिर l2 एंड t-2 अपॉन l1। मैंने स्क्वायर कर दिया। अब मेक इट सिंप्लीफाइड। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो क्या मिलेगा? m1 l2 अपॉन l1, तो वो हो जाएगा l1 एंड t-2। सो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 ऐसा राइट, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा मिलता है मुझे देखो तो। 112 सेम मिल रहा है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, वैलिड है। सो फ्रॉम द रिजल्ट 1 and 2 we can say that given equation is dimensionally consistent। किसी के स्पीकर में से आवाज आ रहा है तो आप आपका स्पीकर म्यूट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये जो इक्वेशन हमको दिया है वो डायमेंशनली वैलिड है। अब क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि सर यहाँ पे हम डायमेंशनली ऐसा क्यों लिखते हैं, खाली वैलिड है ऐसा नहीं लिख सकते? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है आप उसका 100% उसको क्लियरली वैलिड है या नहीं है वो नहीं कह सकते। आप खाली उतना ही कह सकते हैं कि वो डायमेंशनली वैलिड है। वो वैलिड है या वैलिड नहीं है वो नहीं कह सकते आप, बट डायमेंशनली वैलिड है कि नहीं है वो कह सकते हो। क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन टू से, आप कहना क्या चाहते हो? ये डायमेंशनली वैलिड और खाली वैलिड में फर्क क्या है? तो मैं आपको बताऊं। चलो, हमने अभी तो ये प्रूव किया कि ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली वैलिड है, राइट? एम आई राइट? यस और नो? एम आई राइट? यस और नो? फ्रेंड्स हमने अभी तो ये प्रूव किया कि ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है। यस और नो? अरे बोल दो। Yes, sir. ओके, तो मुझे ये बताओ कि अगर मुझे ऐसा इक्वेशन दिया होता कि f इज इक्वल्स टू हाफ mv²/r और उसका पूछते, अगर इसका डायमेंशनली कंसिस्टेंसी पूछते तो क्या होता? वो कंसिस्टेंट होता कि नहीं होता? बताओ मुझे।
होता अगर होता इसका डायमेंशनली कंसिस्टेंसी पूछते तो होता कि नहीं होता? होता ये भी होता, बिकॉज होता। हाफ का तो डायमेंशनल फॉर्मूला 0 0 0 है। अगर मुझे ऐसे पूछते हमको कि 3mv²/r, तो क्या ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट होता ये इक्वेशन भी? यस सर। यस सर ये भी होता। तो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये इक्वेशन, अब मुझे ये भी देखो, ये जो दिया हुआ है वो भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है एंड ये भी कंसिस्टेंट है। तो आखिर में वो इक्वेशन कौन सा है, ये तीन में से कौन सा सही है, तो वो मुझे पता नहीं चलेगा। मतलब वैलिड इक्वेशन कौन सा है वो मुझे पता नहीं चलेगा, बट डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं है वो पता चलेगा मुझे। मतलब ये भी mv²/r भी कंसिस्टेंट है, हाफ mv²/r भी कंसिस्टेंट है, 3mv²/r भी कंसिस्टेंट है। सारे डायमेंशनली तो सारे कंसिस्टेंट है, बट एक्चुअली सही कौन सा है, एक्चुअल में वैलिड कौन सा है, वो यहाँ पे मुझे पता नहीं चलेगा। मतलब ये लिमिटेशन है। by the help of the dimensional analysis you can just check the dimensional consistency, not the really it is a consistent or not, we cannot check that. हाँ, अगर वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं है तो डेफिनेटली हम उसको ऐसा तो कह ही सकते हैं कि वो इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। डायमेंशनल कंसिस्टेंट है तो सवाल है कि वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, बट अगर वो डायमेंशनल कंसिस्टेंट ही नहीं है तो वो डेफिनेटली गलत ही होगा। मतलब देखो, और एक मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाऊं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको एकदम क्लियर होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो अज्यूम दैट द क्वेश्चन इज ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन चेक डायमेंशनल validity of equation kinetic energy k is equals to mv²। ये इक्वेशन का मुझे कंसिस्टेंसी फाइंड करना है। k is equals to mv², where k is a kinetic energy, where m is a mass एंड v जो है वो स्पीड है, वो दिया हुआ है और मुझे उसका कंसिस्टेंसी चेक करना है। चलो इसका सॉल्यूशन लेते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k। तो चलो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है फ्रेंड्स? 1 to 2 1 to 2 m1 l2 t-2 होता है। चलो अब लिखूंगा मैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ mv²। चलो m तो मास है तो मास का तो 1 होगा। अब v इज स्पीड, तो स्पीड का क्या होता है फ्रेंड्स? L1t-1 L1t-1, उसका स्क्वायर कर दो फिर, तो ये हो जाएगा m1 l2, l1 का स्क्वायर l2, m0 का स्क्वायर m0 ही होगा, l1 का स्क्वायर l2 एंड t-1 का स्क्वायर t-2। तो फ्रेंड्स फ्रॉम द इक्वेशन, फ्रॉम द रिजल्ट 1 and 2 I can say that this equation is, बोलो क्या कह सकता हूं मैं? फ्रॉम 1 and 2 I can say dimensionally consistence. can say k is equals to mv² is a dimensionally वैलिड। बट क्या वाकई में ये इक्वेशन वैलिड है? डायमेंशनली तो वैलिड है, बट आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का सही में इक्वेशन कौन सा होता है? हाफ mv²। हाफ mv² होता है। तो वही तो मैं बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पे डायमेंशनल वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, वाकई में वो इक्वेशन वैलिड है कि नहीं है वो हम चेक नहीं कर सकते। बट अगर बेनिफिट क्या रहता है कि अगर वो वाकई में, अगर वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर वो इक्वेशन वैलिड ही नहीं, कोई भी हिसाब से वैलिड नहीं होगा। अगर वो डायमेंशनली ही कंसिस्टेंट नहीं है तो वो वैलिड होगा ही नहीं। बट अगर डायमेंशनल कंसिस्टेंट है तो दो पॉसिबिलिटीज है, वो एक्चुअल में पॉसिबल होगा भी या नहीं भी होगा। So finally I can say I can just check a dimensional validity of a given equation.
तो फ्रेंड्स क्या ये आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब मतलब क्या हुआ कि अगर आपको दो टर्म्स दिया हुआ है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट साइड है, और अगर पूछा गया है कि आपको डायमेंशनल कंसिस्टेंसी फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग से निकालना है, राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग से निकालना है। अगर दोनों सेम है, अगर दोनों मैच हो रहे हैं, तो कह सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। और अगर वो दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो। एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। चलो, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। चलो, x का जो है वो 10 kg है, y का जो है वो 5 kg है, तो कोई मुझे बताएगा z कितना आएगा? 15. 15. 15. 15. हाँ, तो आपने बता दिया कि वो 15 kg आएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो x जो है वो 10 kg है एंड y जो है वो 5 मीटर है। अब मुझे बताओ कि क्या आंसर आना चाहिए? नथिंग सर, चलो अब बताओ क्या आंसर आना चाहिए? कुछ नहीं सर, क्योंकि दोनों टर्म्स अलग अलग है, एक केजी में और एक मीटर में। फिर से बोलो मिस्टर, आप लाउडली बोलो, क्या बोले आप? सर आंसर मतलब इन दोनों का एडिशन ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक केजी में है और एक मीटर में है। या एकदम बराबर, इन दोनों का एडिशन हो नहीं पाएगा, इन दोनों का एडिशन हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज ये दोनों का यूनिट अलग अलग है, तो उसको हम ऐड ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? नॉट Not पॉसिबल। possible. पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इज इट अंडरस्टूड? तो यस सर। कंक्लूजन क्या निकला कि क्या पॉसिबल क्या हो सकता है? लाइक टर्म्स को एडिशन कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को एडिशन नहीं कर सकते। कंक्लूजन ये निकला कि अगर x का यूनिट, y का यूनिट एंड z का यूनिट सेम है, अगर x, y एंड z मतलब जितने टर्म्स दिए हुए, जितने भी टर्म्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जितने भी टर्म्स दिए हैं, वो सारे टर्म के यूनिट्स अगर सेम होते हैं, वो सारे टर्म के यूनिट अगर सेम है, तो ही उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अदरवाइज वी कैन से तो ही वो इक्वेशन पॉसिबल है। अगर वो अलग अलग टर्म के यूनिट अलग अलग है, तो वो इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हमने को सीखने मिला यहां पे? अगर कोई इक्वेशन में दो से ज्यादा टर्म है, तो वो इक्वेशन वैलिड कब होगा? बताओ मुझे, वो वैलिड कब होगा? जब यूनिट सेम होगा। जब सारे टर्म्स, जितने भी टर्म है वो सारे टर्म के यूनिट सेम है, तो ही वो इक्वेशन वैलिड होगा। एंड यूनिट सेम होना उसका मतलब क्या हुआ? उसके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना। यूनिट का सेम होना मतलब उसके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना। एक क्वेश्चन में लेता हूं, उसके द्वारा आपको यह समझ में आ जाएगा। बट वापस से मैं कंक्लूजन एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं। तो कंक्लूजन क्या है कि अगर कोई इक्वेशन में बहुत सारे टर्म्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई इक्वेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन के बहुत सारे टर्म्स है, तो वो इक्वेशन वैलिड कब होगा? जितने भी टर्म्स है x, y, z एटसेट्रा, वो सारे टर्म के यूनिट का मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला, वो सारे टर्म के डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सेम होते हैं, तो ही हम ऐसा कह सकते हैं कि वो जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। जैसे ऐसा कोई है कि x इज इक्वल टू वाई प्लस और माइनस जेड प्लस और माइनस ए प्लस और माइनस बी प्लस और माइनस सी प्लस और माइनस डी। तो ये इक्वेशन कब वैलिड होगा? जब x का, y का, z का, a का, b का, c का, d का, सारे का यूनिट, इफ दे गॉट द सेम यूनिट, ये सारे का x, y, z, a, b, c, d सारे का अगर यूनिट सेम है,
then and then it is a valid, otherwise it is not valid. Is it understood everybody friends? मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं तो उस यस सर ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा, वो ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं अभी, एंड द क्वेश्चन इज ओके। सो क्वेश्चन ऐसा है, check dimensional consistency or validity for equation S is equals to V or T plus half A square T square, where S is a distance, V naught is the initial velocity, A is the acceleration, and T is a time. These all things will be given to you. ये सारा कुछ आपको दिया होगा। अब मुझे ये फाइंड करना है कि ये डायमेंशनली वैलिड है कि नहीं है। चलो कोई मुझे बताएगा क्या करना चाहिए यहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अलग नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड का, राइट साइड ऐसा नहीं करना है। चलो और कोई बताएगा क्या करना चाहिए? सर यूनिट सेम देखना है पहले कि किसका unit- किसका मतलब किसका? कि जैसे स्क्वायर time and speed and velocity. मतलब यहाँ पे आपको ऐसा बोलना था कि सर यहाँ पे इक्वेशन में 3 टर्म है, 1, 2 एंड 3। तो ये जितने भी टर्म्स है वो सारे टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सेम हो रहे हैं, यहाँ पे जितने भी टर्म्स है वो सारे टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सेम होते हैं तो ही ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट होता। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसका कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए? सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस जो है वो तो एस तो क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स L1 होता है। अब इक्वेशन नंबर 1, अब हम क्या करेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V नॉट टी निकालेंगे, मतलब V नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला इंटू टी का डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो V नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी, बट वो इनिशियल है या फाइनल है जो भी है, बट वो है तो वेलोसिटी ना। चाहे इनिशियल सोच लो या फाइनल सोच लो, तो वो तो है तो वेलोसिटी ना। तो वेलोसिटी का क्या होता है फ्रेंड्स? फिर से बोलो, रॉन्ग बोले आप फिर। हाँ, वेलोसिटी का जो होता है वो L1 T-1 होता है। सही बात है आपका। तो वेलोसिटी का जो होता है वो m0 L1 T-1, एंड टाइम का क्या होता है? टाइम का T1। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? m0 L1 T0, इक्वेशन नंबर 2। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे? अब हम करेंगे हाफ A स्क्वायर T स्क्वायर, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो वी विल फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ A स्क्वायर T स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ A स्क्वायर T स्क्वायर, तो उसका जो होगा वो हाफ का डायमेंशनल फॉर्मूला, एक्सेलरेशन के डायमेंशनल फॉर्मूला का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स कोई मुझे बताएगा हाफ का क्या होता है?
M0 M0 L0 T0. तो वो T0. 0 ही है, तो उसको ना रखे तो भी चलेगा। एक्सेलरेशन का क्या होता है फ्रेंड्स? L1 T minus 1 2. -2. उसका वापस से स्क्वायर है। अब टाइम का होता है T1 का T1 square सिंप्लीफाई करते हैं, M0 पावर 2 का 0 ही होगा, L1 का पावर 2 का 2 होगा, T minus 4 होगा, 4 एंड T2 होगा। T2 तो फाइनली M0 L2 L2 T minus 2. T minus 2. So from 1 2 3 result 1 2 and 3 we can say, बोलो क्या कह सकते हैं? Okay, the given expression is No, not dimensionally dimensionally valid. Extra not- consistence. देखो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का तो हो गया सेम, बट थर्ड का तो नहीं हुआ ना, तो थर्ड का मतलब ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। तो वी कैन से दैट गिवन इक्वेशन is not valid. So क्या फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? Yes sir. Yes, sir. तो फ्रेंड मैंने अभी तक आपको दो चीज सिखाई अभी तक मैंने आपको दो चीज सिखाई। एक मैंने ऐसा सिखाया कि अगर दो ही टर्म है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट साइड में, और उसका चेक करना है, तो क्या करना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड का अलग से फाइंड करो, राइट साइड का अलग से फाइंड करो, कंपेयर करो। बट इक्वेशन में दो से ज्यादा टर्म्स है, वो एडिशन में भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का भी वही है। तो अगर इक्वेशन में दो से ज्यादा टर्म्स है तो देख लो कि कितने टर्म्स है, एंड जितने भी टर्म्स है वो सारे का अलग अलग फाइंड करो, सेपरेटली फाइंड करो सबका। और अगर सबका सेम मिलता है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ही हम ऐसा कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड। तो ये दो चीज मैंने आपको सिखाया। अगर दो टर्म्स है तो क्या करना है, अगर दो से ज्यादा टर्म्स है तो क्या करना है। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं, आपको सोचना है। क्वेश्चन ऐसा है फ्रेंड्स, फोर्स इज इक्वल्स टू x अपॉन डेंसिटी प्लस y is dimensionally valid. Find dimensional formula of x and y. चलो किसी को कोई आइडिया आ रहा है फ्रेंड्स? इसको क्वेश्चन को देख के, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो किसी को कोई आइडिया आ रहा है क्या करना चाहिए? सर डेंसिटी को ऊपर लेके जाएंगे, रॉन्ग। फोर्स इनटू डेंसिटी। ये इक्वेशन हमको यहाँ पे डायमेंशनली कंसिस्टेंसी चेक नहीं करना है। पहली बात तो ये कि हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि ये डायमेंशनली वैलिड है ही, वो डायमेंशनली वैलिड ही है। तो व्हाट शुड बी द वेरी फर्स्ट स्टेप? कोई मुझे बताएगा क्या? व्हाट शुड बी द वेरी फर्स्ट स्टेप? X और Y को सब्जेक्ट बनाएंगे। नहीं, रॉन्ग। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? पहले X को सब्जेक्ट बना के Y को ऐसे ही रखेंगे, फिर Y को Okay, as this equation is dimensionally valid, तो सबसे पहला जो टर्म है वो ये आएगा कि यहाँ पे जितने भी टर्म्स है 1 2 3, वो सारे का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा होना चाहिए? सर आपने क्वेश्चन में नॉट वैलिड लिखा है, कहाँ पे नॉट वैलिड लिखा हुआ है? तो ओके मैंने ऊपर का देखा। हाँ, तो सबसे पहला टर्म ऐसा होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप, एज दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड। तो क्या होगा, जिसके अंदर जितने भी टर्म्स है, इसके अंदर जितने भी टर्म्स है वो सारे टर्म्स का यूनिट सेम हो जाएगा। यूनिट सेम होना का मतलब ऐसा हुआ कि वो सारे टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी टर्म्स है वो सारे का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा।
पहली बात, ये इक्वेशन डायमेंशनल वैलिड है, तो हमको पता है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड कब हो पाएगा, जब इसके अंदर जितने भी टर्म्स है वो सारे टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, तो ही वो डायमेंशनली वैलिड है। अगर ये डायमेंशनली वैलिड है तो सारे टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। उसका मतलब ऐसा हुआ, पहले फोर्स एंड वाई का कंपेयर करते हैं, तो y का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो m1 l1 t L1 T-2 जो फोर्स का होगा वही y का होगा। तो मुझे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया, y का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया, तो y का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो मिल गया। चलो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फोर्स को ये x अपॉन डेंसिटी के साथ कंपेयर करूंगा। फोर्स इज डेंसिटी, तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि अगर मुझे x का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स इनटू डेंसिटी। हाँ, फोर्स का एंड डेंसिटी का मुझे उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इनटू डेंसिटी। फोर्स का क्या होता है फ्रेंड्स? M1 L1 1 T-2 एंड डेंसिटी का क्या होता है फ्रेंड्स? M1 minus 3T0. तो फाइनली जो x का जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा मुझे वो हो जाएगा M2 M2 L2 L L minus minus 2 T minus 2. So this is the answer for the density. This is the answer for the x. Yes. So ये तीसरा चीज हम यहाँ पे सीखे कि आपको उल्टा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन में आपको दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो डायमेंशनली कंसिस्टेंसी चेक करने का पूछ सकते हैं, या फिर पहले से ऐसा बताएंगे कि वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है ही और उसके बाद कुछ और पूछेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको तीन चीज सिखाई आज के लेक्चर में। अभी तक मैंने आपको तीन चीज सिखाया। नंबर 1, अगर कोई इक्वेशन में दो ही टर्म है लेफ्ट हैंड साइड और उसका डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करो, राइट साइड डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करो, दोनों को कंपेयर करो। अगर सेम है तो वैलिड है, नहीं है तो नहीं है। दूसरी बात, अगर इक्वेशन में दो से ज्यादा टर्म्स है, अगर बहुत सारे टर्म्स है और उसका डायमेंशनल वैलिडिटी चेक करना है, अगर उसका डायमेंशनल वैलिडिटी चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन के अंदर जितने भी टर्म्स है वो सारे टर्म्स का अलग अलग फाइंड कर दो, सारे टर्म्स का अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करो और सारे को कंपेयर करो। अगर सभी टर्म्स का सेम है तो वो डायमेंशनल वैलिड है। ये दूसरी चीज हमने यहाँ पे सीखा। और तीसरी बात हमने क्या सीखा कि हमको कोई इक्वेशन दिया होगा और बोला होगा कि वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, और उसके द्वारा कुछ और चीज हमको पूछेंगे यहाँ पे। तो ये तीन चीज मैंने आपको सिखाया। अब मैं और एक क्वेश्चन देने वाला हूं, उसका लेवल थोड़ा अप है, उसका थोड़ा सा लेवल अप है, तो आपको थोड़ा सोचना है। यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ वो सारे का फोटोग्राफ आपको व्हाट्सएप के द्वारा मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ उसके फोटोग्राफ आपको व्हाट्सएप में मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूँ उसका थोड़ा लेवल अप है। ओके ओके डिस्प्लेसमेंट x is equals to at plus b upon t plus c plus d. Now this equation is a
dimensionally valid. Find dimensional formula of A, B, C and D. मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, तो मुझे यहाँ पे A, B, C एंड D का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। चलो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सोचो उसके बारे में, इसके बारे में थोड़ा सोचो। सर इधर x डिस्प्लेसमेंट है। हाँ ऑब्वियसली हाँ, इट इज ऑल्सो मेंशन दैट t इज इक्वल्स टू टाइम। तो सर इसके पहले के इक्वेशन में जैसे किया था वैसे इसमें भी सभी को इक्वल कर देंगे क्योंकि डायमेंशन। हाँ ओके, सही बात है। ओके चलो सबसे पहला जो स्टेप आएगा तो वो तो यही आएगा, एज दिस इक्वेशन is dimensionally valid। तो सबसे पहला तो स्टेप वही आएगा कि जितने भी टर्म्स है वो सारे टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब ये बॉक्स का मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो जितने भी टर्म्स है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो सबको हम यहाँ पे सबका मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने सेम कर दिया। चलो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने सेम कर दिया। चलो अब क्या करेंगे सर x को d के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब जैसे x डिस्प्लेसमेंट है, x जैसे डिस्प्लेसमेंट। ओके तो हम 1 by 1 करना चाहते हैं, तो पहले x को at के साथ कंपेयर करेंगे, फिर x को b अपॉन t प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में x को d के साथ कंपेयर करेंगे। बट मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, कोई मुझे बताएगा प्रॉब्लम कहाँ पे होगा हमको? b अपॉन t प्लस c। हाँ चलो सबसे पहले वही सॉल्व करते हैं। हियर t प्लस c इज गिवन, तो चलो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे t प्लस c दिया हुआ है। देखो इक्वेशन तो वैलिड ही है, इक्वेशन में कोई खराबी नहीं है, वो तो वैलिड ही है। तो अगर ये t प्लस सी दिया हुआ है तो इसका मतलब ऐसा होगा कि t प्लस सी कब हो सकेगा, t एंड c का एडिशन कब हो पाएगा? जब वो दोनों जब लाइक यूनिट इक्वल होगा। हाँ यूनिट इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि t प्लस सी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि t का एंड c का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम हो जाएगा, तो ही t प्लस सी पॉसिबल होगा, तो ही t प्लस सी पॉसिबल होगा ना। तो t का एंड c का यूनिट्स डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो सबसे पहले मुझे किसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया, जहां पे तकलीफ थी, जहां पे दिक्कत था उसी का सबसे पहला मिल गया। तो c का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो मुझे मिल गया t1, m0 l0 t1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द c। चलो अब 1 by 1 करेंगे हम, अब 1 by 1 आगे बढ़ेंगे। तो अब हम सबसे पहले दो टर्म को कंपेयर करेंगे। Now dimensional formula of x is equals to dimensional formula of at। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर आपको a का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, x अपॉन t, x का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन t का डायमेंशनल फॉर्मूला करना पड़ेगा। तो x का तो वैसे आपको पता है कि L1 है, वो डिस्प्लेसमेंट है, t का जो है वो T1 है। तो फाइनली ये जो a का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, L1 L1 t माइनस। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? यस सर। यस सर। Yes, sir. हु इज अटेंडिंग फर्स्ट टाइम माय लेक्चर? मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम कौन अभी अटेंड कर रहा है? कोई है यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर यहाँ पे अटेंड कर रहा है? यस सर। यस सर। हाँ कौन है? कुणाल है, और कोई? यस सर। ओके पहले ओके देख लिए। चलो अब हम क्या करेंगे, कोई बताएगा मुझे अब क्या करेंगे? एक्स एंड डी। इन दोनों का बात खत्म हुआ, अब क्या करेंगे हम, इन दोनों के साथ कंपेयर करेंगे। तो नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b अपॉन t प्लस c। तो मुझे b का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, x इंटू टी प्लस सी का करना पड़ेगा।
चलो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको, मेरी बात ध्यान से सुनना। चलो सपोज के t 10 सेकंड है एंड c जो है वो 5 सेकंड है, तो इसका मतलब कि t प्लस c का आंसर कैसे किस में आएगा? सेकंड में। तो वो भाई सेकंड में ही आ रहा है। तो ये जो t प्लस c जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा? T1 वो t1 ही होगा। मतलब यहाँ पे बच्चे क्या करता है पता है, ऐसा करते हैं कि ये t का t1 और c का भी t1, तो उसको दोनों को मिला के 2t1 करते हैं। फ्रेंड्स याद रखो हमेशा कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो ऑलवेज m l t a एंड k में ही होता है। वहां पे आगे 2 3 ऐसा कुछ नहीं होता, आगे कोई डिजिट होता ही नहीं है। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि t1 प्लस t1 मतलब 2t1, ऐसा नहीं कर सकते कि t1 प्लस t1 मतलब 2t1, ऐसा नहीं कर सकते। आपको ऐसा सोचना है कि t जो है वो सेकंड में है, c जो है c जो है वो भी सेकंड में है, तो उन दोनों का एडिशन करेंगे तो उसका आंसर भी सेकंड में ही आएगा। तो t प्लस c का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो भी t1 ही आएगा। तो उसका जो आंसर आने वाला है t प्लस c का वो सेकंड में ही आने वाला है। तो मतलब क्या होगा कि t प्लस c का भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो डायमेंशनल फॉर्मूला t प्लस c का भी t1 ही होगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि t1 प्लस t1 मतलब 2t1, ऐसा नहीं सोचना है, ये गलत है। ओके ये t प्लस c का भी पूरे का वो t1 ही होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. मतलब ये पूरा चीज Yes, जो है sir. वो यूनिट है। यूनिट, आप यूनिट के बारे में सोचो, उसका यूनिट क्या होता है, ये पूरे टर्म का यूनिट क्या होता है वो सोचना है आपको। डायमेंशनल फॉर्मूला कहाँ से बनते हैं? यूनिट से बनते हैं। तो फाइनली बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? L1 T1 L1 T1 आएगा। अब एक बाकी बचा, वो तो आप कर सकते हो खुद भी। D अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? दोनों को X हाँ, X तो अब क्या करेंगे कि here I can say the dimensional formula of x is equals to dimensional formula of d। अब x तो जो है वो डिस्प्लेसमेंट ही है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा m0 L1 T0। खाली L1 लिखते हैं तो भी चलेगा, अगर Yes. खाली L1 लिखते हैं तो भी चलेगा। yes So this is the way you can solve this kind of question। तो क्या फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? yes sir Yes, sir. सर तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम ऐसे इस। सर डाउट है हाँ क्या बोले? क्या बोले? हाँ डाउट बोलो। सर यहाँ पे t प्लस टी मतलब t1 ही होगा, तो t की जगह पे कोई भी डायमेंशन हो जैसे कि a1 या k1 कुछ भी, तो वैसे का वैसा ही रहेगा ना? यहाँ पे मैंने ऐसा बोला कि t प्लस टी सोचना ही नहीं है आपको, ऐसा सोचना ही नहीं है कि t प्लस 2t1 होता है, ये सोच ही गलत है। आपको ऐसा सोचना है कि t जो है वो सेकंड में होता है, c जो होता है वो भी सेकंड में होता है, तो उसका जो आंसर आएगा 10 सेकंड प्लस 5 सेकंड, तो उसका आंसर भी सेकंड में ही आएगा। तो ऐसा सोचना है जैसे t प्लस t1 इज इक्वल टू t1 ऐसा होता है, ऐसा सोचना ही नहीं, वो सोच ही गलत है कि t सेकंड में है, c भी सेकंड में है, तो 10 सेकंड प्लस 5 सेकंड तो मतलब 15 सेकंड, तो आंसर भी सेकंड में ही आया ना, तो सेकंड में आया मतलब उसका t1 ही होता है। आपको ऐसे सोचना है, वो t प्लस टी सोचना ही नहीं है आपको। इज दैट क्लियर? यस सर हाँ बोलो। सर ये जो सारे हमको आंसर्स मिले, जैसे ए का मिला, बी का मिला, फिर हाँ। डी का मिला, इन हाँ। सबको अगर ऐड कर देंगे फिर एक एक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो दोनों सेम ही आएगा ना? किसको ऐड करना है आपको? मतलब जैसे a प्लस बी प्लस डी ये सबका डायमेंशनल फॉर्मूला मिला, उसका फॉर्मूला मतलब जो उनका सम जो हुआ हो फिर उसको x के साथ कंपेयर करें तो सेम ही मिलेगा ना? ऐसा क्यों कहते हो आप? क्या आपको मतलब ऐसा क्यों बोलते हो आप? ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। क्या आपको इक्वेशन में ऐसा दिया हुआ है? क्या ऐसा दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू एक्स, ऐसा दिया हुआ है फॉर्मूला? क्या ये फॉर्मूला है क्या आपके पास? ना, पर अगर हम नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, गलत है आपका सोच, गलत है। ऐसा करना भी नहीं चाहिए और ऐसा होगा भी नहीं, उसका कोई मतलब भी नहीं है। आप जो बोल रहे हो उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे।
हाँ, आपको बोलना है तो ऐसा बोल सकते हो कि सर हम अगर 80 का डायमेंशनल, अगर हम ऐसा बोलना चाहिए आपको, जो आप जो बोलना चाहते हो वो ये है कि सर अगर हम 80 का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करें, b प्लस बी अपॉन टी प्लस सी का फाइंड करें एंड d का फाइंड करें, तो क्या वो सारे डायमेंशनल फॉर्मूला का x का ही हो जाएगा? तो ये बराबर है। हाँ, वो हाँ सारे का तो अगर, वही पूछना चाह रहा हूँ। हाँ तो ऐसा बोलना चाहिए। तो अगर वो आप सारे का इंडिविजुअली फाइंड करते हो तो वो x का मतलब L1 ही हो जाएगा। सही बात है। अगर वो क्रॉस वेरीफाई करना है तो घर पे, मतलब घर पे आप एक बार कर लेना, तो वो बराबर है। इज दैट क्लियर? यस सर चलो एक और क्वेश्चन मैं अभी आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, तो आप उसको ट्राई करो। देखते हैं आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा यहाँ पे, आप ट्राई करना। ओके, तो अभी मैं उसको रब कर रहा हूँ। मैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, देखते हैं आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट दे रहा हूँ मैं, देखते हैं कौन कर पा रहा है। सर आपने v प्लस क्या लिखा है आपने, a बाई वी स्क्वायर की q बाई, आप है ना, मेरी बात सुनो। आपका मोबाइल में आप जूम कर सकते हो, आपके मोबाइल में आप जूम कर सकते हो, यू कैन सी इट क्लियरली। ओके, दिखा अभी आपको? क्या देख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो अभी? यस सर। ओके, सो p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, मैं फिर से एक बार लिख लेता हूं, तो भी मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं। ये जो क्वेश्चन था वो AI में पूछा हुआ है। चलो अब देखते हैं किसमें कितना है दम। अब देख लेते हैं किसमें कितना है दम। तो अभी मैं आपको 3-4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 5-1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। चलो ट्राई करो आप। देखो मेरी बात सुनो, जब आप यहाँ पे लेक्चर अटेंड करते हो तो आपको एक मतलब एक नोट पेन लेके बैठना है। आपको ऑलवेज क्या करना है कि मेरा जो नोट्स है ना, मेरे नोट्स के मैंने जो आपको व्हाट्सएप में नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है, तो आपको उसका हार्ड कॉपी मतलब उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसको भी लेके बैठना है, और एक नोट एंड पेन को भी लेके बैठना है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का बोलूंगा, तो आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो। तो चलो अभी ट्राई करो, मैं आपको 3-4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप ट्राई करो। चलो करवा दूं कि आप ट्राई कर रहे हो? क्या कहते हो, बोलो। ट्राई कर रही है ट्राई सर। कर रहे ट्राई हैं। कर रहे हैं सर। ओके, तो मैं अभी आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप ट्राई करो। ये क्वेश्चन AI में पूछा हुआ है।
सर बोलो, कोई लाया? सर शायद से आया तो है। बोलो बोलो बोलो। m1 l-7 t-2 k-1 is किसकी equal बात to कर रहे a हो? अच्छा, a ए। चलो फिर बताओ। r equals to k-1 और b equals to l3 आपका जो ए है ना, ए वो गलत है और आर भी गलत है, खाली बी ही Sir, सही। can I बी speak? इज राइट। बोलो बोलो। Sir, A equals to M0 L5 T minus 2 and B equals to L cube. ओके, Sir, R नहीं आता. आपका ए गलत है। Okay. चलो और कोई है? कोई Sir, माइकल? L minus L4 होगा M0 L4 T minus 2. नहीं, गलत है। सर मेरा M1 आर का आया है हाँ बोलो। M-1 L6 T-2 किसका है ये? मेरा है मतलब किसका? ए बी आर किसका है? आर का। गलत है, सर गलत है, गलत है। सर बोलो। m1 l6 t-2 k-1 a का गलत है। सर बोलो। ए का M1 L-1 T-2 आएगा। रॉन्ग आंसर। चलो और कोई? M1 L2 T-2
ए का किसका? ए का रॉन्ग आंसर। सर M0 L5 T-2। देखो M0 क्यों बोल रहे हो आप? एक बार फिर से सोच लो, आप नजदीक हो बट आपका कुछ गलत हो रहा है। प्रेरक ओनली M L5 T-2। M का कितना पावर होगा? अरे सॉरी M1 L5 T-2। अब बराबर है, अब बराबर ओके, A का तो ये बराबर A है। का, B का L3 एंड R पता नहीं। हाँ, A एंड B करेक्ट। आपके बहुत अच्छा ट्राई किया आपने, आपका A एंड B बहुत हर करेक्ट। अब R का फाइंड कर लो। सर R कोई मतलब टर्म है, जैसे V वॉल्यूम है वैसा कुछ? हाँ, तो वही तो फाइंड करना है, वो क्या है वो पता करना, वही तो पता करना है। इसीलिए तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करते हैं हम। सर ए का आंसर रिपीट करो ना। नहीं, मैं पूरा क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, मैं अभी ठीक है। नहीं करवा रहा हूँ। देखो चलो अभी मैं करवाता हूँ। देखो बात ध्यान से सुनना। ओके, चलो ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है। और दूसरी बात यहाँ पे प्लस a बाई वी स्क्वायर इज गिवन, तो इन दोनों का एडिशन कब हो सकता है? मुझे ये बताओ कि ये जो दोनों टर्म है p एंड a बाई वी स्क्वायर, उसका एडिशन कब हो पाएगा? दोनों की यूनिट सेम हो तब। हाँ, जब दोनों के यूनिट सेम है, दोनों के यूनिट सेम है मतलब दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। બધાને એક હાર્ડ સમ આપ્યો. हाँ, क्या बोल रहे हो? બધાને હાર્ડ સમ આપેલો. શું કહો છો? ચાલુ છે. ओके, तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो आपको प्रेशर का इनटू वॉल्यूम का क्यूब स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो प्रेशर का क्या होता है? M1 L-1 T-1 T का -2। अब वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम का L क्यूब होता है, वॉल्यूम L क्यूब, और उसका स्क्वायर वापस से, तो L क्यूब का स्क्वायर मतलब क्या होगा? L पावर 6 हो जाएगा। तो पावर 6 L पावर -1, तो L का 5 पावर बचेगा और T-2 बचेगा। चलो ये मुझे मिल गया, ये मुझे A का तो मिल गया। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A वी आर एबल टू गेट। મારે અહીંયા આવી જતો તો પણ ખાલી 1 2 માં અહીંયા 1 1 થઈ ગયું. नाउ चलो A V माइनस बी गिवन, तो फ्रेंड्स ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कब हो पाएगा? V के यूनिट सेम हो हो तब। पाएगा। देखो 10 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, बट 10 सेंटीमीटर में से 2 किलोग्राम सब्ट्रैक्ट हो पाएगा? 10 सेंटीमीटर में से 2 किलोग्राम नहीं सब्ट्रैक्ट हो, दोनों सेम यूनिट का ही हो पाएगा। मतलब V माइनस बी इज गिवन, उसका मतलब क्या हुआ कि जो V का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही तो होगा B का। तो फाइनली आई कैन से जो B का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो वॉल्यूम का ही होगा, एंड वॉल्यूम का तो हमको पता ही है L क्यूब है। चलो प्रेरक आपने आंसर दिया था ना? यस सर। अब प्रेरक ने ये दोनों तो बता दिया था, थर्ड क्वेश्चन में वो अटक गए, थर्ड क्वेश्चन का वो नहीं बता पाए, तो अब क्या करेंगे हम? सोचो क्या करना चाहिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। सर ए में डाउट है। हाँ, एक बार खुद देख लो, खुद डाउट क्लियर करो, ट्राई करो, खुद डाउट का ट्राई करो। तो क्या डाउट है? सर पहले थर्ड स्टेप में आपने लिखा है A = M1 L -1 और T -2, फिर
नीचे आपने लिखा है L5 तो -5 नहीं होगा सर L? अच्छा, क्यों -5 होगा? क्योंकि सर बाहर से हमने वो मल्टीप्लिकेशन किया, बाहर L5 है और क्या बाहर L5 थोड़ी ना है? L6 है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ? कौन बोला? हाँ सर समझ में आ गया सर। हाँ, तो वो L6 होगा। अब हाँ यहाँ वो पे L का 6 हाँ पावर है, L का -1 पावर है, तो क्या बचेगा? हाँ 5 इज इट ओके नाउ? यस सर। ओके, देखो मैंने ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या होगा? अब देखो, अब क्या होगा कि ये जो सारे टर्म है, आपको पता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में जितने भी टर्म होते हैं उस सारे का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। वो सारे का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जितने भी टर्म्स होते हैं वो सारे का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होता है। तो एक काम करते हैं, पहला और छिल्ला मतलब फर्स्ट एंड लास्ट को कंपेयर कर देते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट को कंपेयर कर देते हैं। तो अगर आपको आर का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, अगर आर का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पीवी अपॉन टी करना पड़ेगा। प्रेशर का क्या है? m1 L-1 T-2 है। -2 अब वॉल्यूम का क्या होगा फ्रेंड्स? L3 L3। और नीचे टेम्परेचर है फ्रेंड्स, यहाँ पे टी टेम्परेचर K1 है, तो टेम्परेचर का क्या होता है? K1 K1। K1। तो फाइनली ये जो आर का हो जाएगा उसको M1 L2 T-2 K तो -1 M1 L2 T-2 K-1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये लेवल का क्वेश्चन AIEEE में पूछा गया था। तो क्या मजा आया आपको फ्रेंड्स? यस सर। Yes sir। तो अभी मैं क्या करूंगा, आपका लेक्चर अभी मैं फिनिश करने वाला हूं, बट अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाया है अभी वो सारे आपको व्हाट्सएप के द्वारा उसका फोटोकॉपी आपको मिल जाएगा। तो आपको होमवर्क में वो सारे क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई करके सॉल्व करना है खुद। तो वो यस सर। है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी मैंने आज करवाया उसके बेस पे मैं 10 to 15 क्वेश्चन 10 एक क्वेश्चन मैं एडिशनल दूंगा सॉल्व करने का। आज मैंने जो भी कुछ करवाया उसके बेस पे मैं 10-12 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का एक्स्ट्रा दूंगा। तो आपको होमवर्क में 2 चीज करनी है, एक तो आज का जो मैंने करवाया वो सारे क्वेश्चन आपको खुद एक बार खुद सॉल्व कर लेना है, और दूसरा मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन दूंगा इसके बेस पे वो करना है। तो आज मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे फ्रेंड्स खत्म कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो YouTube में ये वीडियो आज दोपहर के बाद उसको देख पाओगे। जो बच्चे नए हैं आज पहली बार लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो उसको मेरा रिक्वेस्ट है कि वो एक बार YouTube के वीडियो देख ले, और कहीं पे भी डाउट मिले तो मैं उसका अलग से एक सेशन ले सकता हूँ। तो मुझे उसको फोन करना पड़ेगा उन लोगों को, तो उसका अलग से भी सेशन हो जाएगा। आई होप कि आपने पेपर सारे भिजवा दिए होंगे, वो जो मतलब भव्य भाई को आपने पेपर भेज दिए होंगे, या प्रक्षाल भाई को मैंने जो नंबर दिया था वहां पे आपने पेपर सेंड किए होंगे। यस सर। शायद चेक करके वापस मिल गए होंगे, अगर नहीं मिले मिल जाएंगे। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है?